Israel launched Operation Rising Lion. As dawn broke, the world watched in shock as Israeli jets roared over Iran, pounding nuclear and missile sites in a coordinated assault that left Tehran, Natanz and military compounds ablaze. सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए, सारे एयर स्पेस बंद कर दिए गए, मूवमेंट इसका पूरा बंद हो गया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ईरान से है। ईरान में भारतीय दूतावास ने Indian students in Tehran have been moved to the city of Qom of proximity. The Indian embassy, in close coordination with Iranian authorities, is facilitating. The blast took place next to her dorm itself and many students were injured. My daughter and her friends, all the students are in a very panic state. It's a terrible state over there. जुमे की सुबह इमरान मेहदी और शबाना मेहदी के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न थी। फ़ोन पर कई मिस्ड कॉल्स थे। फिर शबाना की बहन का फ़ोन आता है और वो ख़बर दी जिससे वो बेहद खौफज़दा हो गए। ईरान पर हमला हो चुका है। उनकी बेटी फरिया मेहदी जो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में चौथे साल की तालिबा हैं, इन्हीं ख़तरनाक हालात में फंसी हुई हैं। वालिदैन बेचैनी के आलम में मुसलसल कोशिश करते हैं कि बेटी से बात हो जाए। नाक़िस इंटरनेट के बावजूद आखिरकार फ़रीहा से बात होती है, मगर इतवार को इत्तला मिली कि फ़रीहा के हॉस्टल के बिल्कुल करीब धमाका हुआ है। शबाना मेहदी कहती हैं कि उस लम्हे ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन हमारे कदमों से खिसक गई हो। अगरचे इंडियन एम्बेसी ने बरवक्त इक़दाम करते हुए तमाम तलबा को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, मगर माँ का दिल फिर भी बेचैन है। शबाना सवाल करती हैं कि जहाँ धमाका बिल्कुल क़रीब हो, वो जगह वाकई में कितनी महफूज हो सकती है। अब वो वालिदैन जो अपनी बेटी को रोशन मुस्तक़बिल के लिए बाहर भेज चुके हैं, अफसोस में डूबे हैं। उनकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील है कि बराह करम हमारे बच्चों को फ़ौरी वतन वापस ले आएँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। My daughter's name is Fariha Mehdi. She's doing her medicals at Tehran University of Medical Science. This is her 4th year. And we came to know about this situation Friday morning. We woke up and we all were terrified, did not know what to do. We tried reaching her and internet was not allowing us to reach because their net was very low. We were all panicked. In fact, they are also very panicked. And Sunday, and the blast took place next to her dorm itself and many students were injured. My daughter and her friends, all the students are in a very panic state. It's a terrible state over there, cannot be explained. I as a mother, I don't want to see my child, not only me, all the mothers. I speak of all the mothers whose children are stuck over there. I speak on behalf of them. I request our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and our External Affairs Minister. It's an appeal from all the parents to evacuate the students from Tehran back to our home country. I have 100% trust on our government and our Prime Minister that he will get my daughter and all the students out there. How did you come to know about this panic? Did your daughter call you first, or how did you come to know about this? I saw many missed calls. It was early in the morning. Generally, she doesn't give me so many calls. Then I was terrified, trying to reach her. I am not able to reach her. Then she called my sister. Yeah, and then they were in touch with her. They called me. And this is how I came to know about the situation. After you received all many response you got after, did you call her back? Yes, I called her back. Yeah, I spoke to her. That's what our reaction was very terrific. They all were in a panic state and they were not able to speak also. It was like, Mama, blasts are happening here, there, everywhere. It's a very bad state. I don't know what to do. But after that situation, our Indian embassy have got in touch with our students. I really thank our Indian embassy that they have taken such an extreme step, going out of the way, and they are helping. I am in touch with my daughter off and then because there's no, but she is telling me that our embassy, Indian embassy, is helping them a lot. They have taken all the details, and from here we have given all the details. They have right now relocated her to a safe location as of now, but I don't know how far it is safe,
When did you call her today? When was the last? When did you speak to her? Today morning I spoke to her last. Yeah, that's what their resources is getting over, and they are all panicked. Though they are in safe place, but they are not in a good state. They just want to, reach us back. She's doing MBBS, right? Yeah, she's doing her. When did she come to India last? She had come for a vacations in the month of April. ये क्या हुआ, फ्राइडे मॉर्निंग के दिन मेरे फ़ोन पे मिस कॉल्स थे और मेरे वाइफ के फ़ोन पे मिस कॉल्स थे। तो इतने सारे मिस कॉल्स थे बच्ची के, तो हम लोग थोड़ा पैनिक हो गए कि इतने सारे मिस कॉल्स हैं। तो बाद में वो कॉल बैक कर रहे थे तो कॉल बैक नहीं लग रहा था, तो वी कॉल्ड अवर सिस्टर का कॉल आ गया कि उनका कॉल है, ऐसे हो गया। सो इमीडिएटली वो ओपन द टीवी, वी सॉ दिस अनटुवर्ड इंसिडेंट, ऐसा हो रहा है बोल के। तो देन फाइनली वी वर एबल टू टॉक टू हर। सो हम लोग यहाँ से मोटिवेट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पे वो लोग पैनिक स्टेट में थे, रात भर सोए नहीं, हम लोग सोए नहीं, कई दिन रातें वो लोग नीचे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि बिल्डिंग के ऊपर नहीं रहना, सब लोग हॉल में रहना, बिल्डिंग के हॉल में नीचे रहना पूरे, और रात भर जागते रहना, मतलब कुछ भी हुआ तो वहाँ से भागने के लिए, एस्केप होने के लिए। और फिर करते करते ऐसे 2 रातें गुजर गई। तीसरी रात में उनके बिल्डिंग के आसपास वहाँ पे कुछ एक ब्लास्ट हुआ, कार बम ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से कुछ लोग वहाँ वोंडेड भी हो गए थे। तो उसके बाद ये लोग बोले कि अब हम अपनी बिल्डिंग छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट बिल्डिंग में जाके वहाँ पे कुछ देर बेसमेंट में रुकते हैं, मगर हमें इंटरनेट नहीं आएगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ से परेशान थे। फिर बाद में रात में कॉल आया कि एम्बेसी के स्टाफ का टच में है और यूनिवर्सिटी के वो लोग कोऑर्डिनेट करके उनको रीलोकेशन कर रहे हैं। तो उन लोग को बस अरेंज किया कि वहाँ से वो रीलोकेट किया, तो वहाँ पे ले गए। मीनवाइल मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे इमीडिएटली कोई फ़्लाइट अगर आ रही है 1-2 दिन में इमीडिएटली, तो एक फ़्लाइट संडे की थी, मैंने उसमें एयर अरेबिया में बुक किया। अब बुक करने के बाद जब तक ये सब हो रहा था, उम्मीद थी कि फ़्लाइट में वो आ जाएंगे, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई और सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए, सारे एयर स्पेस बंद कर दिए गए, मूवमेंट इसका उस पूरा बंद हो गया। अब कोई ऑप्शन नहीं था। मीनवाइल यहाँ पे इन लोग को बस से वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे सेफ जोन में, तो अभी वहाँ पर है। तो वहाँ पर 2 दिन हो गए हैं, मतलब ये अभी पैनिक स्टेट में है कि इससे आगे बढ़ना है। ये वहाँ से आर्मीनिया बॉर्डर नज़दीक है, अभी आर्मीनिया बॉर्डर ले जाने के लिए उनको इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब गवर्नमेंट बस अरेंज करेगी, कब वो वहाँ से आर्मीनिया बॉर्डर गएंगे। एक बार आर्मीनिया बॉर्डर आ गए तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि वो वॉर जोन के बाहर आ चुके हैं। आज सुबह में बात हुई थी, उनका नेट बहुत कम आ रहा है, वीडियो कॉल नहीं जा रहा है, कभी कभी थोड़ा से कट हो जाता है, वॉइस का प्रॉब्लम होता है। तो होता यह है कि वो उनके जो यहाँ पे अकोमोडेशन में है, अंदर नेटवर्क स्लो है, तो वो उनको रोड पे आके बात करने से नेटवर्क आता है। तो अभी हम लोग ने बोला रोड पे मत आओ, क्योंकि रोड पे सेफ़ नहीं है, उधर ये हालात ऐसे हैं, उधर पार्किंग लॉट में मत जाओ, उधर दूर ही रहो, कमरे में रहो करके। तो वो एक परेशानी है कि कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पाती, और उन लोग का कम्युनिकेशन लो होने की वजह से वो भी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एम्बेसी को, थोड़ा से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो अभी वो नेक्स्ट मूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि एम्बेसी की स्टाफ उनको आए और उनको मतलब अगला इंस्ट्रक्शन दे कि वो कब पहुंचेंगे आर्मीनिया। सुनने में आया कि रिपोर्ट ऑलरेडी एक बैच आर्मीनिया पहुंच चुकी है आज। वो लोग काफ़ी करीब थे उनकी कॉलेज बॉर्डर से, तो उनको पहले हो गया, वहाँ आ चुके हैं। तो अब वेट कर रहे हैं कि इनका कब ऐसा मौका आएगा। मतलब अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी कल होएगा या परसों होएगा तो मालूम नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ भी रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि सारे तेहरान खाली हो रहा है, सब लोग निकल गए हैं, बट ये ज़्यादा दूर नहीं है डिस्टेंस। तो इसलिए चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो कंट्री से बाहर पार कर लें। You think they said that you want your daughter to go back to continue study? I really don't know now, because with all this situation, now I'm kind of regret, okay, why did I take this extreme decision? Because I never thought that this is going to happen, because all these years so many students had gone there and come back. The reason we choose her was she had scored very high marks, and in fact she got here we got a seat, but it was a very expensive seat. So there she was getting affordable seat with scholarship and all that. So we decided an MBBS was her choice. Here she got dental. She wanted to do MBBS studies.
So we were very hopeful because a lot of students in the past, our friends, daughters, son, relatives, they have come back and said they've given a good review about the university. It's known as Tehran University of Medical Science terms. So right now I really can't say. My only hope is that she comes back home safely. Not only her, all the students, all our Indian students who are with her in that batch, they all come back safely and soundly. What's your appeal to the government, sir? Government appeal क्या? We just appeal ki that because everything is time bound, so जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इवैक्यूएशन हो गया तो सबके लिए इनके सेफ्टी रहेगी करके, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सबको, क्योंकि वो लोग वेट नहीं करते जब ऐसे वॉर जोन होती है, तो इसलिए कि अपनी गवर्नमेंट से ये अपील है कि बस जल्दी से जल्दी दोनों हमारी गवर्नमेंट के रिलेशनशिप भी अच्छे हैं दोनों पार्टी से, तो दोनों पार्टी से बातचीत करके थोड़ा से उनको बच्चों को बाहर निकाल लें, बस यही है मेरी अपील।